Hi, this is your mentor Ashish Purushottam. I welcome to you all on our Atulya series. Atulya simply means incredible. So that we have discussed in our first class that we will be discussing largely the key point from this thing so that it can help you in your prelims. Fine. So today in Atulya series we will be discussing what. So it is basically the early Vedic and post Vedic period time period. Fine. Let us try to understand what is its context and how it is important for the UPSC prelims. So basically, when we talk about the early Vedic period time, at least there will be one or two questions from this section. Fine, either directly or indirectly. So we will largely try to cover the most important aspect of this topic so that you can get something out of it. Fine. Again, you will to invest 20-25 minutes. Rest be assured, if there will be a question from this topic, you will be getting 1 or 2 marks if there will be questions from this topic only. Fine. So let us try. What is the Vedic period and post Vedic period? So in last class we have discussed about our this fall of the Harappan civilization, and in that उसमें हमारा एक बहुत important था कि most probably because of the advent of the Aryans from the Central Asia or so called Aryans, they replaced Harappan people. Fine. सो ये एक लार्जर कंसेप्ट है जो लार्जली एक्सेप्टेबल कंसेप्ट भी है. सो उसके बाद ही वैदिक पीरियड शुरू होता है. और वैदिक पीरियड के बारे में मैं आपको कुछ मोटी मोटी बातें बता देता हूं कि पहला कि वैदिक पीरियड की शुरुआत होती है आर्यंस के एडवेंट के साथ इंडिया में. इनका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन था, फाइन, इनका जो ज्योग्राफिकल लोकेशन था, अगेन दिस इज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया. व्हेन वी टॉक अबाउट नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, सो ट्राई टू रिकॉल द सो कॉल अखंड भारत का नॉर्थ वेस्ट, अभी का नहीं, अखंड भारत का. सो ये अपना मैप हो गया और ये रहा नॉर्थ ईस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट का जो पार्ट है यहां से आर्यंस एडवेंट हुए थे. दिस इज लार्जली एक्सेप्टेबल थ्योरी कि आर्यन यहीं से आए थे. इनका लार्जर एक्टिविटीज हड़प्पन सिविलाइजेशन के आसपास वाले ही जगह पे कहीं ना कहीं सुपर इम्पोज हुआ करता था. फाइन, चलिए. So that is actually जो Aryans आए थे. Now let us try to understand the key concept and key things of this topic. Fine. So basically the cities of the Harappa culture had declined by the 1500 BC. We have considered क्या क्या इसके reasons हुआ करते होंगे, but वो हमने देख लिया. Fine. उसके बाद क्या होता है कि consequently their economic and administrative system had slowly declined. ये generally होता है. कल्चर के डिक्लाइन के साथ कहीं ना कहीं आपकी दूसरी चीजों का भी डिक्लाइन होता है, इसलिए इट इज कंसिडर्ड कि कल्चर का कभी डिक्लाइन नहीं होना चाहिए. फाइन. Also, around this period, the speakers of the Indo-Aryan languages, that is the Sanskrit, entered the northwest India from the Indo-Iranian region. जो मैंने बताया सेंट्रल एशिया से ये लोग आए थे. कहाँ आए थे? तो नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी में आए थे, यहाँ से आए हुए हैं. फाइन, दिस इज द कंसेप्ट. फाइन, ओके. और इनिशियल सेटलमेंट वेयर इन द वैलीज ऑफ द नॉर्थ वेस्ट एंड द प्लेन्स ऑफ द पंजाब. आज का जो पंजाब है उस जगह पे माना जाता है कि उन्होंने इनिशियली अपना सेटलमेंट शुरू किया था. फाइन, दिस इज ऑल्सो ए कंसेप्ट. फाइन. Also, they were basically cattle keeping people and they were mainly in the search of the pastures. Basically हमने देखा कि जो वैदिक पीरियड के लोग हैं वो बेसिकली क्या है, कैटल हिडर्स और पास्चरल सोसाइटीज थी. द सेम टाइम हरप्पन सोसाइटी वाज क्वाइट डेवलप्ड, और वो क्या थी, दैट वाज द अर्बन सिविलाइजेशन. एट द सेम टाइम ये ग्रामीण पृष्ठभूमि के लोग थे, ग्रामीण सभ्यता से, संस्कृति से जुड़े हुए लोग थे, और इनका मुख्य काम क्या था, पशुपालन था. फाइन, चलिए. The original home to Aryan is a debatable question and there is a several views. Views क्या कैसे हैं? तो there are two theories related to कैसे Indians Aryans आए इंडिया में. तो there are two theory, that is the AIT, that is the Aryan invasion theory. Second is the Aryan migration theory. And now there is a developing concept, that's reverse migration theory. And in between there are some, it's actually politically debatable subject, that's why I will not go into the detailing of this thing, but you should be knowing कि क्या क्या इसके आस्पेक्ट हैं. आर्यन इन्वेजन थ्योरी ये कहती है कि आर्यंस इन्वेट किया, उनके ओरिजिनल एविडेंट्स लाइक हरप्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल को रिप्लेस कर दिया उन्होंने. आर्यन माइग्रेशन थ्योरी ये कहती है कि नहीं, उन्होंने इनको रिप्लेस नहीं किया था, बल्कि ये माइग्रेट हो गया तो धीरे धीरे यहीं पे रह गए, और दे आर ऑल्सो सेटलर्स लाइक द ब्रिटिशर्स और दैट लाइक द अदर रिलीजियस पीपल लाइक द मुगल्स एंड ऑल. एंड अभी ऑफ लेट जो शुरू हुई है, दैट इज द रिवर्स माइग्रेशन थ्योरी. इनका ये कहना है कि नहीं, हम लोग जाके सेंट्रल एशिया और अदर पार्ट में जाके सेटल हुए हैं, ना कि वो लोग हमारे यहाँ हैं. अगेन दिस इज इमर्जिंग कंसेप्ट, बट अगेन इट्स अ पॉलिटिकल डिबेट. क्वेश्चन नहीं आएगा, बट यू शुड बी नोइंग क्या है नहीं है.
ऑल्सो उस टाइम के कुछ स्टॉलवर्ट थे, फॉर एग्जाम्पल बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने आर्गू किया था कि आर्यंस जो थे बेसिकली वो आर्कटिक रीजन से आते थे। फाइन, बहुत सारे लोगों का मानना था ये सेंट्रल एशिया से आए थे, कुछ लोग बोलते थे आर्टिक रीजन से आए थे, कुछ लोग कहते थे नॉर्डिक रीजन से आए थे। डिबेटेबल क्वेश्चन है, लार्जली आई थिंक दे विल नॉट आस्क क्वेश्चन कि वो कहाँ से आए थे। फाइन, ऑल्सो देयर आर थ्योरी ऑफ साउदर्न रशिया से वो लोग आए थे। सो अगेन दीज आर नॉट फिक्सिंग, इमर्जिंग कंसेप्ट है, इमर्ज हो गया तो दे कैन आस्क क्वेश्चन, और साइंटिफिक इसकी प्रूविंग हो गई बाय द आर्कियोलॉजी की और अदर थिंग, देन दे कैन आस्क कि वो कहाँ से आए थे, नहीं आए थे। फाइन, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आर्यन सिविलाइजेशन की जो बात शुरू होती है वो वैदिक कल्चर से शुरू होती है। इसको हम लोग वैदिक कल्चर भी कहते हैं, आर्यन कल्चर भी कहते हैं, या आर्यन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। एंड वेदास आर द रूट ऑफ, और वेदास आर द बेस ऑफ दिस सिविलाइजेशन। फाइन, और वेदा जो बना है ये रूट वर्ड विद से बना है, जिसका मतलब होता है टू नो, जानने को कहते हैं विद। फाइन, तो यहीं से बना हुआ है। फाइन, और लार्जली देयर आर 4 वेद हैं, कौन कौन से? ऋग्वेदास, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। फाइन, ये मनाता है ऐसे तो यजुर्वेद के भी कृष्ण यजुर्वेद और दूसरे पक्ष भी हैं, लेकिन उसको भी हमें नहीं देखना है, लार्जली देखना है कि यूपीएससी में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। फाइन, और इन सब में सबसे जो पुरानी वेदास हैं वो क्या है? ऋग्वेदास हैं, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 1028 हाइम्स। 1 जीबी में कितना एमबी होता है? तो 1020, इतना ही हाइम्स उसमें होते थे, इतने से मंत्र होते थे। ऑल्सो वेदास को श्रुति कहा जाता है बिकॉज एट ए लार्ज चंक ऑफ द टाइम वेदास को कोई पढ़ते नहीं थे, कोई लिखा नहीं जाता था। वेदास गुरु शिष्य परंपरा से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की ओर माइग्रेट होते थे, मतलब उनको बोला जाता था, श्रुति की तरफ करता था, गुरुकुल सिस्टम से चलता था, इसलिए एक लार्ज पीरियड ऑफ टाइम तक कोई रिटर्न नहीं है वेदास का अप्रूव, इसलिए कुछ डिस्टॉर्शन भी हुआ है ऐसा माना जाता है। इसमें कुछ चीजों का एडिशनल हुआ है, कुछ चीजों का डिलीटेशन हुआ है। फाइन, पर लार्जली माना जाता है कि ये इंटैक्ट सिस्टम है। फाइन, ये है ऋग्वेदास। सेकेंड क्या है? इट इज द यजुर्वेदा दैट कंटेन्स वेरियस डिटेल ऑफ द रूल्स टू बी ऑब्जर्व्ड एट द टाइम ऑफ द सैक्रिफाइस। जो सैक्रिफाइसेस होते हैं, जो हम लोग बलि प्रथा अभी के टाइम में तो हो गया, उस टाइम नहीं हुआ करता था, या किसी टाइप का सैक्रिफाई है जो भगवान को खुश करने के लिए, ऊपर वाले को खुश करने के लिए, गॉड को खुश करने के लिए किया जाता था, उसके बारे में डिटेलिंग कहाँ है? तो यजुर्वेदा में, बेसिकली मंत्रास एंड ऑल हैं। सामवेदा इज कंसिडर्ड द बुक ऑफ द चैंट्स एंड द ओरिजिन ऑफ द इंडियन म्यूजिक, यहीं से होती है। सामवेदा को कहा जाता है कि इंडिया का जो म्यूजिक का कल्चर इतना रिच है, सारा का सारा क्रेडिट किसको जाता है? तो सामवेद के ऊपर जाता है इसका। फाइन, चलिए, नाउ इट इज द लास्ट थिंग जिसका सबसे बाद में डेवलपमेंट हुआ है, दैट इज द अथर्ववेदा। यहाँ पे क्या है? रिचुअल्स एंड द स्पेल्स एंड द चार्म्स, और द वहां पे मंत्र तंत्र की शिक्षा जहां से शुरू होती है अथर्ववेदा में होती है। अथर्ववेदा को माना जाता है इट्स अ ब्लैक मैजिक की चीजें जितनी भी शुरू होती है, जो कहीं ना कहीं जाके आप एक सेटल्ड पॉपुलेशन से अलग करते थे, उसको अथर्ववेद डिस्कस करती थी। फाइन, तो चार्म्स एंड द स्पेल्स एंड द ब्लैक मैजिक्स आर डिस्कस्ड इन द अथर्ववेदा। फाइन, इसके अलावा 2-3 चीजें हैं, जैसे ब्राह्मणास। ब्राह्मण्स क्या होते हैं? ये कास्ट ब्राह्मण नहीं है, बस ब्राह्मण्स होते हैं। ट्रीटिटाइज रिलेटेड टू द प्रेयर्स एंड द सैक्रिफिकल सेरेमनीज आर नोन एज द ब्राह्मण्स। एट द सेम टाइम उपनिषद की एक बात आती है। उपनिषद कुछ भी नहीं है बट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वेदास इन द फिलोसफिकल कनोटेशंस आर नोन एज द उपनिषद, मींस फिलोसफिकल टेक्स्ट डीलिंग विद द topics like the soul, absolute, the origin of the world and the mysteries of nature are written in what? It is written in the Upanishads. इसके बाद भी एक चीज होती है जिसको आर्यनक कहते हैं, that is the forest book and they deal with the mysticism, rites and rituals and sacrifice. आरण्यक क्या होते हैं? आरण्यक ऐसी किताबें होती हैं जिसके बारे में आप, जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपको आज के टाइम में केमिस्ट्री के लैब में जाकर कुछ एक्सपेरिमेंट करना हो तो आपको कुछ कपड़े स्पेशल पहनना पड़ते हैं, या फिर आज आप जैसे कोविड के टाइम में सिचुएशन में कुछ डील कर रहे हैं, या फिर आप बायो लैब में कुछ बना रहे होते हैं, तो आपको एक स्पेशल गियर्स पहनने पड़ते हैं, एक स्पेशल प्रिकॉशंस लेना पड़ते हैं, एक स्पेशल एसओपी उसके लिए होता है। आर्यनक कुछ भी नहीं थे, एक एसओपी का बुक था जिसमें बताया जाता था कि यदि आपको चार्म्स करना है, मिस्टिज्म करना है, आपको यदि कुछ एक्सपेरिमेंट करना तो आप कहाँ जाके जंगल में जाके कीजिए, ताकि आपका कुछ गलत भी हो जाए तो उसका बैड इफेक्ट इसके ऊपर ना आम जनता के ऊपर नहीं पड़े। इससे रिलेटेड जितने लोग थे उनको आर्यनक कहा जाता था। ऐसी किताबें जिसके बारे में एसओपीज लिखे जाते थे, जिसके बारे में मैजिकल चार्म्स लिखा जाता था, उसको क्या कहा जाता था? आर्यनक कहा जाता था। फाइन, चलिए, also during the Rigveda period Aryan were mostly confined to the Indus region. ये बेसिकली इंडस रीजन में ही सिविलाइज थे, यहीं पे आके रह गए थे, बिकॉज वहाँ पे आप देखिए मैंने बताया था नॉर्थ अभी का जो पंजाब पार्ट है इंडिया का भी प्लस पाकिस्तान का भी, वहाँ कहीं ना कहीं आर्यन पीपल आके सिविलाइज हुए थे। ऑल्सो
ऋग्वेदा में रेफरेंस है किसका, सप्त सिंधु का और द लैंड ऑफ द सेवन रिवर्स। जैसे अभी के टाइम में पंजाब है, उस टाइम सेवन रिवर का रेफरेंस वहां पे है, जिसमें दो रिवर अभी माना जाता है कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हो गई है या फिर इनका कहीं ना कहीं मर्जर हो गया। फॉर एग्जाम्पल सरस्वती जो बेसिकली एक क्या रिवर थी, जो मिस्टिकल रिवर है, जिसको बारे में माना जाता है ये एग्जिस्ट तो करती है बट अब कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड हो गई है, उसका रिलेशन भी है। इसके अलावा कौन से रीजन, तो जो पंजाब में 5 हैं, दैट इज झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज एंड इंदस, 1 2 3 4 5 6 एंड दिस इज सरस्वती, इसलिए इसका नाम सप्त सिंधु एरिया रखा गया था। चलिए, now let us try to understand the political, social and cultural life of the Rigvedic people, and it can be traced on the hymns of the Rig Vedas। कैसे पता चलता है कि वो किस टाइप की उनकी पॉलिटी थी, किस टाइप उनका सोशल लाइफ था और कैसा वो कल्चर था उनका, तो ये सारी की सारी चीजें कहाँ लिखी हुई हैं, तो ये ऋग वेदास में और या वेदेस में लिखे हुए हैं इन जनरल। फाइन, और उनका टाइम पीरियड क्या है, 1500 टू 1000 BC, जो आपको ऊपर टॉपिक पे ही लिखा हुआ है, दैट इज टू ऑब्वियस। फाइन, चलिए, now let us try to understand the political life of the Rigvedic people, and the basic unit of the political organization of the Rigvedic people was kula or the family। दो यूनिट जो था वो क्या था, फैमिली था। अभी भी कहते हैं ये कुलीन घर का लगता है, मीन्स कि वो वैदिक पीरियड का ही हैंगओवर अभी भी चल रहा है। अभी भी कहते हैं कि अच्छे घर से कोई होता है उसको क्या कहते हैं, कुलीन घर से है, तो इसलिए कुला और द फैमिली यूज्ड टू बी द बेसिक बेडरॉक जहां से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन शुरू होती थी। ऑल्सो बहुत सारी फैमिलीज एक साथ मिल जाती थी और इनका एक किनशिप बनाती थी, जिसको ग्राम भी कहा जाता था। गांव जो होता था या ग्राम जो होता था अभी एक क्लिष्ट भाषा में, वो बहुत सारी एक सिमिलर लाइक एक माइंड लोगों का क्या था, एक फैमिली हुआ करता था, इसको ग्राम कहते थे। एंड द लीडर ऑफ द ग्राम वाज नोन एज द ग्रामिनी। क्या कहते थे, ग्रामिनी। लीडर ऑफ द रीजन को कहा जाता था ग्रामिनी। फाइन, जो ग्राम का अध्यक्ष होता था उसको ग्रामणी, जिसका भी का टाइम में मुखिया कहा जाता था। ऑल्सो a group of villages consisted of larger unit called Vishu, that is headed by विश्वपति। तो एक बहुत बड़े विलेजेस हो गए तो उसको हेड करता था कौन, विशु। बहुत सारे गांव मिलके बनाते थे विश्व, उसको जो हेड करता था उसको विश्वपति कहा जाता था, मींस द हेड ऑफ दैट 5-6 गांव का मुखिया। चलिए, एंड द हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट वाज जना और ट्राइब। द हेड ऑफ किंगडम वाज कॉल्ड राजन और किंग। ऑल्दो अभी तक पॉलिटिकल कुछ ऐसा डेवलप नहीं हुआ था, बट इट इज लार्जली कंसिडर्ड कि जो हेड ऑफ द एनी प्लेस होता था उसको राजन कहा जाता था। और ये राजन जो होता था वो हेरिडिटरी पहले नहीं होता था, क्योंकि ये क्वालिटी के हिसाब से डिसाइड होता था कि कौन राजन होगा किसी जगह का। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड बाय फिगर्स कि इनकी पॉलिटिकल यूनिट कैसी थी। तो कैन वी ड्रॉ ए फिगर लाइक दिस, जहां पे जो सबसे लेवल छोटे पे है वो क्या है, दैट इज द ग्राम, विश। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सबसे नीचे लेवल पे जो चीजें हैं, जहां से पॉलिटिकल यूनिट शुरू होता है, उसको हमने क्या कहा हुआ है, दैट इज द गांव और ग्राम। फाइन, उसके बाद क्या शुरू होता है, दैट इज द विश। इसको मैं हिंदी में लिख रहा था और इसको बेसिकली लेट अस ट्राई टू राइट इन ए सेम लैंग्वेज एज द इंग्लिश। फाइन, ठीक है। और इसके हेड को क्या कहा जाता था, विशपति, राइट, ठीक है। और हाईएस्ट यूनिट को क्या कहा जाता था, जन और ट्राइब। और इसका हेड होता था, उसको कहते थे राजन। इसके हेड को विशपति और इसके हेड को ग्रामिनी। मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है बट आप समझ लीजिएगा, दैट इज द थिंग ओवर देयर। फाइन, चलिए, दिस इज द पॉलिटिकल। सबसे छोटे लेवल पे ग्राम होता था, फिर विश होता था और फिर क्या होता था, दिस इज द जन होता था। होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर एस्पेक्ट अबाउट द ऋग वैदिक पॉलिटी। फाइनली, सो क्या होता था, नॉर्मली मोनार्कियल एंड द सक्सेशन वाज प्रेजेंट ओवर दिस सोसाइटी। हाउएवर एक लार्ज चंक तक एबिलिटी के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन एज ए राजन होता था। फाइन, चलिए अब राजन होगा तो कहीं ना कहीं उनको एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होगी। डिसीजन मेकिंग बॉडी ये मिल बैठ के बांटेंगे, तो ऐसी डिसीजन की बॉडी जहां पे लोग मिल के बैठते थे, उसको 2 विभागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट वी कॉल सभा यूज्ड टू बी द काउंसिल ऑफ द एल्डर्स और द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ दैट सोसाइटी, एंड सेकेंड वाज कॉल्ड समिति, that was generally an assembly of the entire population. Now let us try to understand this thing using figure. So core of the core was sabha,
एंड दिस वाज द समिति। अभी के टाइम से मैं इसको पैरेलल ड्रॉ करूं जस्ट टू गिव यू एन अंडरस्टैंडिंग क्या सभा और समिति में डिफरेंस था। तो सभा अभी के टाइम में समझ लीजिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, और समिति क्या है, तो ये पार्लियामेंट है अपनी। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि कैसे हम लोग इसको एक पैरेलल ड्रॉ कर सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कौन होते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन, कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह बैठ के डिसीजन लेते हैं, और उस जनरल चीजों को डिस्कस करने के लिए देयर इज समिति। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या और फर्क था। तो सभा में इट इज जनरली कंसीडर्ड टू इट वाज एक्सक्लूसिव फॉर द व्हाट, exclusive reserved for the influential person। at the same time समिति was for the general people, कोई भी आके यहाँ पे बैठ सकता था। चलिए, also ऋग्वैदिक सोसाइटी was patriarchal in nature। ये पितृ सत्तात्मक सोसाइटी थी। पितृ सत्तात्मक मीन्स यहाँ पे कहीं ना कहीं मेल का डोमिनेंट होता था। एंड द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी वाज फैमिली एंड ग्राम, जो हमने डिस्कस कर लिया। और गांव के उस फैमिली के हेड को गृहपति कहा जाता था, या अभी भी के टाइम में कहा जाता है गृहस्थ। फाइन, सो इस टाइप का वर्ड जो हो वो अभी भी चलते रहता है। तो उस एक फैमिली के हेड को गृहस्थ कहा जाता था। फाइन, चलिए। ऑल्सो मोनोगमी वाज जनरली practiced while polygamy was prevalent among the royal and noble family। मोनोगमी मीन्स शादी एक से ही होगी। एट द सेम टाइम कुछ बड़े जो लोग होते थे वो पॉलीगमी प्रैक्टिस करते थे, मीन्स वो बहुत सारे लोगों से शादियां किया करते थे। वुमेन का कंडीशन क्या था, बिकॉज वुमेन के कंडीशन से पता चलता है कि सोसाइटी की कंडीशन क्या थी इन लार्ज। तो एज पर द अवेलेबल टेक्स्ट वुमेन वर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी एज मैन फॉर देयर स्पिरिचुअल एज वेल एज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वुमेन्स की कंडीशन काफी अच्छी रही है, क्योंकि आपने वुमेन्स को काफी जगह पे डिसीजन मेकिंग में जगह दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल, दे कैन अटेंड एनी फंक्शंस, दे कैन अटेंड एनी डिसीजन मेकिंग बॉडीज लाइक सभा समितिज, वहां पे आराम से वो अटेंड करते थे। बाद में काफी चीजें बदल गई। फाइन, ऑल्सो it is largely considered that there are women poets like the Apala, Vishwaswara, Ghosha, Lopmudra, etc. during Vedic period, and they can even attend the popular assemblies. For example, समितिज में ये अटेंड करती थी, और ये ऐसे बड़े वुमेन्स जो पढ़ी लिखी लोग थी जिनका नाम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में क्वेश्चन भी आ गया, अपाला, विश्वेश्वरा, घोष, लोपमुद्रा, ये लोग क्या होते थे, कहीं ना कहीं समिति का हिस्सा होते थे, और इनको ब्रह्मवादिनी भी कहा गया है। क्या कहा गया है, ब्रह्मवादिनी। ये कौन होते थे, सो लर्नेड वुमेन्स वर नोन एज द ब्रह्मवादिनीज। फाइन, चलिए, इनके कुछ नाम यहां पे दिए हुए हैं। ऑल्सो there was no mention of child marriage and sati pratha was also absent during the Vedic period time। फाइन, सती प्रथा का कोई मेंशन नहीं है, और शादी भी एक मैच्योर एज में होती थी। ये इस सोसाइटी की विशेषता थी, खासियत थी। फाइन, चलिए। ऑल्सो बोथ मेन एंड वुमेन वेर ऑफ अपर एज वेल एज लोअर गारमेंट मीन्स ऑफ द कॉटन एंड द वूल। कपड़े पहनते थे जो वो कॉटन के होते थे, बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों होता था और वूल के क्यों होता था, बिकॉज वी हैव द कंटिनेंटल काइंड ऑफ द क्लाइमेट, एंड ऑल्सो नॉर्थ वेस्ट में ठंड काफी पड़ती है, अभी भी पड़ती है, पहले भी पड़ती होगी। तो फॉर दैट वूलन कॉटन वो कपड़े पहनते थे। नॉट ओनली दैट, गर्मी के टाइम में कॉटन कपड़े भी पहनते हैं। एंड ए वैरायटी ऑफ ऑर्नामेंट वाज आल्सो यूज्ड बाय द बोथ मेन एंड वुमेन। तो फैशन सेंस हमारा काफी पुराना है। फाइन, ऑल्सो खाने की चीजें क्या क्या की थी प्रिवलेंट, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो व्हीट क्या थी, व्हीट एंड बार्ली, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट लाइक कर्ड एंड घी वाज क्वाइट पॉपुलर। अभी भी आप जाके देखिए नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, फॉर एग्जांपल हरियाणा से आप आगे बढ़ते हैं तो घी और दूध दही का काफी एक वहां पे कल्चर है। तो वो कहीं ना कहीं वैदिक पीरियड का ही असर रहा है, जस्ट टू रिमेंबर करने के लिए वहां पे क्या क्या फूड एंड ऑल होते थे। फाइन, ऑल्सो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स वेर द चीफ आर्टिकल ऑफ द फूड। वो खाते थे तो वेजिटेबल एंड फ्रूट्स भी खाते थे। फाइन, एंड इट इज ऑफ कॉ मीट वाज प्रोहिबिटेड सिंस इट वाज ए सेक्रेड एनिमल। फाइन, और यहीं से कहीं ना कहीं कॉ प्रोटेक्शन की एक जो सेंस आ जाती है इंडियंस में, यहीं से आती है, बिकॉज इट इज वाइडली कंसीडर्ड दैट कि ईटिंग ऑफ कॉ मिल्क वाज प्रोहिबिटेड, क्योंकि माना जाता था कि गाय जो होती थी वो काफी सेक्रेड एनिमल होती थी, और उसको यदि आप खाएंगे तो आप कैसे, दूध कैसे आएगा, घी कैसे आएगा आपके घर में। इकोनॉमिकल वैल्यू इसकी काफी थी, इसलिए माना गया है कि इसको आप किल करके, इसको आप मार करके नहीं खाएंगे, नहीं तो आप फिर इसके दूध और घी को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे। और द सेम टाइम जो घर की बेटियां गौ का दूध निकालती, उसको दूहतिर कहा जाता था। नाम ही वहां से हो गया था कि बेटियों को एक असाइन टास्क आता कि गौ का मिल्किंग करने का, उनको दूहतिर कहा जाता था। फाइन, ऑल्सो चैरियट रेसिंग, हॉर्स रेसिंग, डाइसिंग, म्यूजिक, डांस वर द फेवरेट पास टाइम।
समझते हैं क्या क्या वहां पे वो अम्यूजमेंट कर लिया करते थे, तो चैरियट रेसिंग करते थे, इसको वाजपेयी यज्ञ भी कहा जाता था। फाइन, डांसिंग भी काफी प्रिवलेंट था, म्यूजिक भी काफी प्रिवलेंट था। फाइन, ऑल्सो द सोशल डिवीजन वर नॉट रिजिड ड्यूरिंग द ऋग वैदिक पीरियड टाइम। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग क्या होती है, वी आवर सोसाइटी इज लार्जली डिवाइडेड इनटू these four class. First and uppermost part is led by whom? Brahmins. Fine. Second part is led by Kshatriyas. Third is the Vaishyas, and last में is Sudras. I am not saying it. It is written in our books, and Vedic period का society ऐसा ही था. Fine. Although अभी काफी रिजिड हो गई, let us try to understand कि वैदिक पीरियड टाइम में अपनी सोसाइटी कैसी थी। वैदिक पीरियड टाइम में हमारी सोसाइटी काफी फ्लेक्सिबल थी, बिकॉज उसमें माना जाता था कि एक शूद्रा कैन माइग्रेट टू द ब्राह्मण्स एंड एक ब्राह्मण हु इज नॉट कैपेबल कैन be as shudras at the same time. At the same time, there was interchangeability between the Vaishyas as well as Kshatriya. It simply says that आप में क्या था, that there was no rigid caste or varna system ड्यूरिंग अर्ली वैदिक पीरियड टाइम। रिजिड नहीं था, आपकी कैपेबिलिटी के अनुसार आपको ब्राह्मण्स बन सकते थे, आप अपनी कैपेबिलिटीज के अनुसार आप क्षत्रिय बन सकते थे, आपको यदि बिजनेस सेंस है, आप बिजनेस में इन्वॉल्व हैं तो वैश्य बन सकते थे, मींस बिजनेस क्लास बन सकते थे, एंड इफ आप मैनुअल वर्क कर रहे हैं तो आप शूद्रा बनेंगे। फाइन, सो यहाँ पे कई बार मेंशन आया है बहुत बार कि एक ही फैमिली में देयर आर शूद्रास, एक ही फैमिली में देयर आर वैश्यास, एक ही फैमिली में देयर आर क्षत्रिय, एंड एक ही फैमिली में देयर आर ब्राह्मण्स। सो लार्जली इसका ही माना जाता है कि देयर वाज नो रिजिड कास्ट सिस्टम, नो रिजिड कास्ट सिस्टम वाज देयर इन द अर्ली वैदिक पीरियड टाइम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें वहां से सीख लेने की भी जरूरत है। जो हमारी एक सोसाइटी आज के टाइम में फ्रैक्चर्ड है, देयर आर मल्टीपल फोर्सेज दैट आर अफेक्टिंग अवर द सोसाइटी एट लार्ज, कैन वी लर्न फ्रॉम दिस काइंड ऑफ द सिचुएशन जहां पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी थी, आप किसी भी वर्ण में जाके माइग्रेट हो सकते थे। Also, Rigvedic Aryans were pastoral people and their main occupation was cattle rearing. वो पशुपालन का काम करते थे, इसलिए मैंने कहा कि eating of the cow milk or cow meat was prohibited during this period time. Also, when they permanently settled in North India, they began to practice agriculture. With the knowledge of the use of iron, they were able to clean forest and bring more land under the cultivation. अब क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं डेवलप होती है उनकी सोसाइटी, और अब डेवलपमेंट के साथ उनको कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कैटल रेयरिंग करके ही आपका ऑक्यूपेशन नहीं हो सकता। नाउ फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडिया they have started settling into the mainland of India, that is in the Gangetic Plain, or Gangetic Plain used to be the one of the richest source of the forests, और forest को काटने के लिए उन्होंने आयरन इम्प्लीमेंट का यूज करना शुरू कर दिया। यहीं से इंडिया में आयरन का यूज होना शुरू होता है। फाइन, चलिए, not only that, carpentry was also one of the important profession, and availability of the wood from forest cleared made the profession profitable. अभी क्या होता है कि आप सेटलमेंट के लिए क्या करते हैं, फॉरेस्टेज को काटते हैं, तो उसकी जो वुड, उसका जो प्रोड्यूस मिलता है उसको आप क्या करेंगे, तो उससे कहाँ पे हुआ, आपको उसका वुडन फर्नीचर्स बनाने लगे। इसलिए कारपेंटर्स बिकम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी। एक नए क्लास का डेवलपमेंट होता है कारपेंटर्स। ऑल्सो दे यूज टू मेड क्या चैरियट फ्रॉम द प्लगशेयर एज वेल एज, वो रथ बनाते थे, एज वेल वहां से क्या करते, हल भी बनाया करते थे। ऑल्सो वर्कर्स इन मेटल मेड ए वेराइटी ऑफ आर्टिकल फ्रॉम द कॉपर, ब्रॉन्ज एंड आयरन। यहाँ पे कहीं ना कहीं कॉपर का भी यूज था, ब्रॉन्ज का भी यूज था, एंड द आयरन का भी यूज प्रिवलेंट हुआ करता था वैदिक पीरियड के टाइम में। Now let us try to understand other economic condition during the Vedic period time. तो spinning was one of the important occupation, and cotton and woolen fabrics were made. हमने डिस्कस किया, कपड़े जो पहनते थे वो कॉटन और वुलन के होते थे, इसलिए स्पिनिंग का भी काम वहां पे होता था। Also, the potters were made various kind of the vessels and domestic use. Trade was another important economic activity, and rivers served as the important means of the transportation. जो वो potters थे, basically OCP कल्चर कहा जाता है। ऑक कलर पॉटरीज की बात होती है, यहाँ पे पॉटरीज जो बनती थी वो भगवा कलर जो बोलते हैं उस कलर का बनता था। आप भी देखेंगे अभी भी के टाइम में हम लोग जो मृदभांड होता है वो भगवे कलर का होता है, कैसा होता है, ऑक कलर का होता है। चलिए, ऑल्सो ट्रेड वॉज conducted on the barter system. In the later time, gold coins called nishaka were used as a media of exchange in last transaction.
और अब क्या होता है, एक नए क्लास का डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक क्लास का, बिकॉज इकोनॉमिक क्लास के डेवलपमेंट के साथ आपको एक ट्रेडिंग सिस्टम चाहिए, कॉइनेज का सिस्टम यहीं पे डेवलपमेंट शुरू होता है। और निशा कास जो एक गोल्ड कॉइन होता था उसका यहाँ पे एक्सचेंज होना शुरू हो गया वैदिक पीरियड टाइम में। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ऑल्सो रिलीजियस एस्पेक्ट देखते हैं वैदिक पीरियड टाइम का, तो वैदिक पीरियड आर्यंस वर्शिप द नेचुरल फोर्सेस लाइक अर्थ, fire, wind, rain, and thunder. Also, they personified these natural forces into many gods and worshipped them. For example, Indra was one of the most popular god of Vedic period time during the early Vedic period time. इसके बाद जो एक गॉड इंपॉर्टेंट होते हैं वो अग्नि होते हैं, हु रिगार्डेड एज द इंटरमीडिएटरी बिटवीन द गॉड्स एंड द पीपल। तो इंद्रा को सुप्रीम गॉड माना गया बिकॉज ही यूज टू कंट्रोल वॉट नेचर। उसके बाद जो गॉड आते हैं उनका नाम रखा गया अग्नि। अग्नि से लोग डरते थे, अग्नि से लोग हेल्प भी मिलती थी, इसलिए अग्नि को इन बिटवीन द गॉड एंड द भगवान रखा गया, गॉड एंड द ह्यूमन रखा गया। उसके बाद बात आती है वरुणा की, एंड इट यूज टू बी वन ऑफ द अनपॉपुलर of the natural order. Also, there are mention of the female godhead like Aditi and Usha. Aditi कौन थी? तो she used to be the wife of the sun as well as Usha. She used to be the morning time की जो goddess होती थी, उनको उषा कहा जाता था। So there were no temples and no idol worship during the early Vedic period. यहाँ पे कोई भी एक मेंशन नहीं है कि वहाँ पे टेम्पल का कुछ बात आती है या फिर कहीं पे मूर्ति पूजा की बात आती है, तो नहीं, इस टाइप का वहाँ पे कोई मेंशन नहीं है। लोग नेचुरल फोर्सेस को पूजा किया करते थे। Also, prayers were generally offered into God into expectation. कहीं ना कहीं उनको ऑफरिंग दी जाती थी, और ऑफरिंग्स कहाँ पे? घी, मिल्क और ग्रेन में दी जाती थी। वहां पे कोई भी पशु बलि का कोई कल्चर अभी तक नहीं आया हुआ है। चलिए, that was all on the Vedic civilization. Hope you have enjoyed it. We have largely tried to cover most of the important aspect. कुछ चीजें हैं जिसको मैं अभी भी डिस्कस कर लेता हूं, that will sum up the entire Vedic period का population. For example, ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड टाइम जब राजा का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया, टेरिटरी, पॉलिटिकल टेरिटरी की एक बात आने लगी, तो हमने कहीं ना कहीं उसको करने के लिए वी हैव डिवाइज्ड फ्यू थिंग्स। फॉर एग्जांपल, देयर इज अ मेंशन ऑफ व्हाट यज्ञ, वेरियस टाइप ऑफ द यज्ञ। यज्ञ हुआ करता था। यज्ञ क्या होते हैं? तो देयर आर लार्जली 3 or 4 टाइप ऑफ द यज्ञ। फॉर एग्जांपल, there used to be the Vajpayee Yagya, that used to be the chariot raid, that used to be the Ashwamedh Yagya. अश्वमेघ यज्ञ क्या होता था? जैसे आप राजा बनते हैं तो आप टेरिटोरियल एक्सपेंशन के लिए एक यज्ञ करते थे, जहाँ पे आप एक घोड़ा होता था, एक हट्टा कट्टा घोड़ा होता जिसको आप बांध देते थे और उसको दौड़ाते थे। जहाँ तक घोड़ा चला जाता तो वो आपकी टेरिटरी हो जाती। जिसने आपके घोड़े को रोका उससे आपको लड़ाई करनी पड़ती थी। यदि आप लड़ाई जीत गए तो वो टेरिटरी आपकी, यदि आप जीत गए तो जिसने अश्वमेघ यज्ञ कराया होगा वो टेरिटरी उसकी, और यदि वो हार गया तो उसकी टेरिटरी को ले दिया जाता था। समझ रहे हैं? अश्वमेघ यज्ञ कुछ नहीं होता था, डोमिनेंस के लिए होता था। अभी आज के टाइम में भी क्या होता है, इफ यू आर डोमिनेटिंग एनी एरिया तो वो आपकी टेरिटरी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अभी एलएसी के ऊपर जहां पे हमारा डोमिनेंस है वो हमारा एरिया है, कुछ नहीं करते हम लोग, वहां पे अश्वमेघ यज्ञ कराते हैं। हमारी पेट्रोलिंग जहां तक जाती है उसको हम लोग परसेप्शन लाइन कर देते हैं, जो हमारे अभी भी देखते होंगे, बार बार न्यूज में आ रहा होगा। अश्वमेघ क्या था? परसेप्शन लाइन को सेट करती थी कि ये हमारी टेरिटरी है, तुमने यहाँ पे मुझे इन्फ्रिंज किया तो हमको आपको लड़ाई करनी पड़ेगी। लड़ाई में आप हार गए तो आपको टेरिटरी से सीट करनी पड़ देती है। वाजपेयी यज्ञ क्या था? चैरियट रेड हुआ करता था, अम्यूजमेंट के लिए होता था। जो किंग होते थे उसके नीचे जो उनके प्रिंसेस होते थे वो आपस में यज्ञ, ये वाजपेयी यज्ञ करते थे। चैरियट रेसिंग होती थी, जो जीत जाता था उसको नेक्स्ट किंग माना जाता था। नॉट ओनली दैट, देयर आर मेंशन ऑफ अदर यज्ञ लाइक वाजपेयी यज्ञ हो गया, अश्वमेघ यज्ञ हो गया, एंड देयर आर अदर यज्ञ। ऐसे ऑल दीज सबका कहीं ना कहीं लार्जर पर्पस क्या है? तो डोमिनेंस का या फिर कोई ना कोई रिचुअल से इसका रिलेशन हुआ करता था। ऑल्सो लेटर ऑन क्या होता है कि वैदिक सिविलाइजेशन काफी एक मैच्योर फेज में आ जाती है और यहाँ से फ्लोरिशिंग होनी शुरू हो जाती है। वो माइग्रेट होके आ जाते हैं मगध वाले एरिया में। उसके बाद शुरू होता है पोस्ट वैदिक पीरियड ऑफ टाइम, और उसको हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। फाइन, thank you for on this chapter. Fine, hope you have enjoyed, and we have largely tried to cover the large aspect. कुछ और छूट बढ़ गया होगा तो we'll discuss on the question test series वाले section में। Thank you.